नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव बजाज यानी आरकेबी और मैं हूं उस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa, Pradeep ji. Abarya Kochambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Right, so very interesting show today, and we've got a great panel of guests as well. We'll go to them very, very shortly. But the fact remains, yesterday India played Pakistan. We defeated Pakistan. India defeated Pakistan by 7 wickets. Surya Kumar Yadav dedicated that victory to the Indian Armed Forces and said that the entire Indian cricket team and everybody else stands by the victims of terror in Pahalgam. That, I think, was a great gesture. It was fantastic. We can believe that Prime Minister Modi turned it around because Uddhav Thackeray Sena and some opposition were really highlighting the very fact that आप क्रिकेट कैसे खेल सकते हो, हम सिंदूर भेजेंगे। उद्धव बाला ठाकरे जी अपने कार्यकर्ताओं को, लेडीज को कहा कि आप सिंदूर भेजिए प्राइम मिनिस्टर के पास। तो आई थिंक he has turned it. Prime Minister Modi has turned the entire thing around. प्रदीप जी, वो सवाल तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि भैया कैसे खेल सकते हो? सीधी सादी बात है। एक तरफ कहते हैं कि खून और पानी इकट्ठे नहीं चलते, खून और टॉक से इकट्ठे नहीं चलते, और उसके बाद हम लोग जाकर के क्रिकेट खेल रहे हैं, एशिया कप में हैं। हाँ, इतना ज़रूर है भाई, यूर सिग्नेटरीज टू द आईसीसी चार्टर। अब क्या है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चार्टर के आप सिग्नेटरी हैं, तो लिहाजा जो भी मल्टीलैटरल टूर्नामेंट्स हैं वहाँ पर आपको खेलना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ वहाँ पे प्रदीप जी, जनाब हमारे सूर्य कुमार यादव साहब जो हमारे कप्तान हैं, उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया पाकिस्तानियों के साथ। None of the team members shook hands with the Pakistanis, and now the Pakistanis are screeching that unless and until the match referee Andy Pycroft is, if he is not sacked, then they will boycott the rest of the tournament, and so on and so forth. So, well, I don't know. I mean, it's like crazy. In any event, people like Shoaib Akhtar say that there should be no politics in sports. Really? Shoaib Akhtar saying there should be no politics in sports. He's the guy who comes along and says that we believe in the two nation theory and we believe in this and we believe in that and we are actually Pakistan and we are a martial race and so on and so forth. This is what the guy said. Shoaib Akhtar. Shahid Afridi talking about how, you know, Pakistan can easily take over Kashmir. Waqar Yunus thanking Allah for the victory. I forgot the batsman whom that he praises. Imran Khan always praises as the finest batsman of Pakistan. Javed Miandar? No. Or is it Amir Sohail? Or no, who is it? Lately. When Imran... Babar Azam? Somebody like that? Before, God knows. Just before. He was the coach of the batting team of the Pakistani team. I forgot his name. They just call him Alu. Inzamam ul Haq. Inzamam ul Haq. Yes. Saying all sorts of things about India. Really, I mean, yeah, this is really rich coming from the Pakistanis. But in any event, it was very nice to see India defeat Pakistan again. And it will be nicer to see India, you know, win the Asia Cup. I hope they do. But the way they are playing, I hope they do. And that's just about it. Number two, which is very important at the moment, far more important than cricket and other things, I think, very, very frankly speaking, Supreme Court has more or less upheld most of the amendments to the Waqf Act, apart from a few things, like, for instance, all encompassing powers that had been given to the district collector have been taken away. The Supreme Court has said come through the original legal process. ट्राइब्यूनल के सामने जाइए, उसके बाद हाई कोर्ट में जाइए, उसके बाद जो भी लीगल प्रोसेस था उसके द्वारा आइए. But the Waqf Act, the amendments have been upheld. That's what has happened. And the 5 years proof that you are practicing. That also is not required. Yes. और दूसरी चीज क्या है कि सबसे बड़ी चीज जो बहुत लोगों के लिए एज ए रिलीफ आई होगी कि वक्फ बाय यूजर जो है वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया है. मतलब जो सरकार चाह रही थी वही किया है कि भैया अगर किसी की जमीन है और वो वक्फ बाय यूजर के तहत किसी भी वक्फ बोर्ड ने गलत मतलब गैर कानूनी तरीके से टेक ओवर करने की कोशिश करी है, सो दैट विल नॉट अप्लाई. ऑफ कोर्स, व्हाट इज द मेथड फॉर गिविंग द प्रॉपर्टी बैक टू द राइटफुल ओनर, that has not been specified as yet. Let's go straight across to our guests. We have a very, very lovely panel of guests tonight. We've got Sanjay Dwivedi Sahab. Sanjay Dwivedi Sahab, namaskar. Jai Shri Ram. Jai Shri Ram, sir. Har Har Mahadev. Thank you very much. Sanjay Dwivedi Sahab from the Shiv Sena from Lucknow. Nasir Sahab of the Congress Party wearing a lovely red shirt. Namaskar, sir.
Just like नमस्कार सर, नमस्कार। just like the Lal Zawai of Khan Abdul Ghaffar Khan Sahab and the red shirts of Garibaldi and Mazzini. But I'm worried. I'm amazing. worried because नासिर साहब हमेशा राहुल गांधी जी को देखते, हम उनसे उनको देखते तो राहुल गांधी जी याद आते थे। अब गए बार काले शर्ट पर टी शर्ट पहना था, वो व्हाइट छोड़ दिया, व्हाइट टी शर्ट पहना छोड़ दिया। नहीं, इस बार लाल में है सर, इस बार ही रिमाइंड्स मी ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान। And लाल लोशाही जी बिल्कुल। और हमारे अली दारूवाला साहब कंग्रेचुलेशंस बाय द वे, कंग्रेचुलेशंस आर इन ऑर्डर दारूवाला साहब, यू वर जस्ट अवॉर्डेड द दारा शिकोह अवार्ड, कंग्रेचुलेशंस टू यू, कंग्रेचुलेशंस टू यू। आरिफ मोहम्मद खान साहब was the chief guest at the function and he gave the award to you, so great, wonderful. And whenever we see Daruwala sahab come on the program, it's like he's just come out of the boxing ring. एक राउंड बॉक्सिंग करके बाहर निकले ऐसे लगते हैं। वंडरफुल, एब्सोल्युटली वंडरफुल। तो नासिर साहब, जहां तक वक्फ बोर्ड का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत अब वक्फ अमेंडमेंट जो है तकरीबन अपहोल्ड कर ली गई हैं, अपार्ट फ्रॉम अ कपल ऑफ देम, जिसमें कहा गया है कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ओवरवेलमिंग पावर्स जो दे दी गई थी वो अब नहीं है, और जो लीगल कानूनी तरीके से जो पहले चल रहे थे वैसे ही चलेंगे। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर नासिर साहब? आज का सबसे अहम टॉपिक ही होना चाहिए आपके पैनलिस्ट में जो बैठे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एक ऑर्डर पास किया, भले अंतरिम आदेश हो मगर वो लागू तो हो ही गया है जी कि जो कलेक्टर को सारी पावर देने की बात थी उसके पावर को कट किया है। अब जी। पहले से हम कहते आ रहे थे कि ट्रिब्यूनल में जाना चाहिए, मगर भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। मगर सुप्रीम कोर्ट ने आज जो डिसीजन दिया वो एक चुनिंदा फैसला है, उस पर हम लोग उसका इस्तकबाल भी करते हैं, क्योंकि किसी हक के हकूक को मारा जाए तो वो हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को सारे लोगों ने खटखटाया और अदालत ने एक बेहतरीन फैसला दिया है, जिसमें सिर्फ एक कलेक्टर का ही नहीं है, उसमें यूजर बाई वक्फ बाय यूजर, हाँ वक्फ बाय यूजर, उसके ऊपर भी फैसला दिया। अब 5 ईयर का प्रैक्टिस अनिवार्य नहीं है जी। अभी, वक्त कोई भी कर सकता है और कोई कैसे करेगा वो देखते हैं। अभी उसका पूरा डिटेल अभी नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में मेरे पास वो नहीं है कि उस पर क्या कहा है उन्होंने। सेकेंड, उन्होंने कहा, मैं पहले से भी कहता था कि सरकार के ही अधीन आती है वक्फ, मगर भारतीय जनता पार्टी थी उसे मानने को तैयार नहीं थी, वो कभी भी ये मानती नहीं थी कि वो सरकार के अंदर आती। मैं पहले से भी कहता था वक्फ में करप्शन हो सकता है, उससे कोई इनकार नहीं करता है, पर वो भारतीय जनता पार्टी उसको समझने को तैयार नहीं थी। पर सुप्रीम कोर्ट ने एक दरवाज़ा खोला है, उसका हम इस्तकबाल है कि आपने एक इंसान से पावर छीना है और अदालत के रास्ते को आपने दिखाया है कि हम ट्रिब्यूनल भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। ये एक अहम फैसला है और गरीबों के लिए, जो माइनॉरिटी समाज के सताए हुए बच्चे हैं, उनको एक इंसाफ मिलेगा। जी जिसके जमीन पे कब्जा होने वाला था, उस जमीन के कब्जे को अब बचाया जा सकता है। तो आपके पास अदालत से बड़ा कोई दरवाजा नहीं हो सकता था। शायद मेरे दोस्त जितने भी पैनलिस्ट में बैठे, कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि जब हम अदालत के दरवाजे पे जाएं और जो अदालत फैसला करे उसे हम मान लें। आज अदालत के सामने जो फैसला गया उसको सबको इस्तकबाल करना चाहिए। जिस तरह बाबरी मस्जिद में फैसला आया, अयोध्या के लिए फैसला आया, मुझे यकीन है कि ये अंतरिम ही सही, मगर जब पूरी फैसला आएगी तो वो वक़्फ़ के हक और हकूक में फैसला आएगी और हम सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से इस्तकबाल भी करें। सैयद नासिर हुसैन साहब, बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जब उनके सामने पेश किया कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज किस प्रकार से यूसअप किया जा रहा है, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को हड़प किया जा रहा है, उस चीज को रोकना जरूरी है। वक्फ बाय यूजर, तो गवर्नमेंट, द सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड, यस, इफ द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज आर बीइंग यूसअप्ड, अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज का कब्जा हो रहा है तो उसके लिए रोकना जरूरी है। स्टेप्स हैज टू बी टेकन टू स्टॉप दैट। इट हैज हैपेंड। प्रदीप भाई, बिल्कुल प्रदीप भाई, हमने कब कहा कि वक्फ बोर्ड सरकारी चीजों को कब्जा कर ले और हम उसके समर्थन में रहे? यह हमने कब कहा है? या वक्फ बोर्ड ने कौन सी सरकारी चीजों को कब्जा किया है उसका एक डिटेल दे दे तो हमें भी मालूम हो और आपको भी मालूम हो और देशवासियों को भी मालूम हो।
आखिर कौन सी चीजों को वक्फ बोर्ड कब्जा कर रहा है? वक्फ बोर्ड तो खुद सरकार के अंतर्गत में आता है। हर यूपी में आता है तो यूपी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आता है, बिहार में होगा तो बिहार गवर्नमेंट के अंदर में होगा, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल अगर वक्फ बोर्ड है तो उसके चेयरमैन कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट ही नियुक्त करती। और तो बोर्ड सारी मेंबर्स भी चीज- गवर्नमेंट ही नहीं, नियुक्त करती है, करेक्ट? करेक्ट। तो मैं कह रहा हूं सारी जगह नियुक्ति है तो भारत की सरकार या स्टेट की सरकार करती है। तो कौन सी सरकारी प्रॉपर्टी को वक्फ ने कब्जा किया है उसका एक डिटेल दे दे। वक्फ तो बोल रही थी कि अडानी का घर, अंबानी का घर वक्फ का है, वो सरकार पहले लौटा देती। जो अंबानी पे आज भी औरंगाबाद में उस पे हेयरिंग चालू है, वो उसका मुआवजा देने को कुछ कह रहे हैं, कुछ रेंट देने की बात कह रहे हैं, अभी हेयरिंग में मैंने सुनना है। तो पहले तो वो लौटा लेती। भारत की सरकार या महाराष्ट्र की सरकार पहले अंबानी के घर जो वक्फ के जमीन को कब्जा करके बैठी है उसको छुड़ा लेती। वही कहना चाहता हूँ, कौन सी चीजों को वक्फ ने सरकार की चीजों को कब्जा किया है तो उसका एक डेटा आ नहीं, जाता दुरुस्त है, बात। एक लिस्ट आ जाता है, उस पर हम एनालिसिस करते हैं। और चाहे वो सबसे बड़ी बात दारूवाला यहाँ पर ये है, साहब हो या नासिर शिवसेना साहब, के वक्ता, कोई भी उस पर बेहतर जवाब देगा सर। नासिर साहब और अली दारूवाला साहब और संजय द्विवेदी साहब, सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जिस जिस प्रॉपर्टी को यह कहा जा रहा है कि गैर कानूनी तौर पर हड़प किया गया है, भाई आप प्रोसीडिंग शुरू करिए ना। किसने मना किया है? ये सिर्फ बोलने से क्या फायदा है? अगर कहीं पर भी वक्फ बोर्ड हो या कोई भी संस्था हो, यहां पे क्योंकि वक्फ की बात हो रही है, वक्फ की बात करते हैं। अगर सरकारी जमीन के ऊपर किसी ने कब्जा किया है, किसी ने भी किया हो, यहां पे वक्फ बोर्ड है, आप प्रोसीडिंग शुरू करिए। इट इज जस्टिसिएबल इन द हाई कोर्ट जाइए, एविडेंस प्रेजेंट करिए, गुड मॉर्निंग, और जिसने किया उसको जेल भेजिए। मतलब मेरा सिर्फ ये कहना है कि एलिगेशंस जो एक चार्जेस हम लगा देते हैं ना, आरोप लगा देते हैं, ओ वक्फ बोर्ड ने कब्जा कर लिया, वो नहीं होना चाहिए। दिस इज माय ओपिनियन कि आप लिस्ट दीजिए, एविडेंस दीजिए, प्रोसीड, डोंट जस्ट टॉक इन द एयर। नासिर साहब, व्हाट डू यू से टू दैट बिफोर आई गो टू अली दारूवाला साहब? बोलिए सर। नहीं, मैंने वही कहा, यहाँ सिर्फ वक्फ बोर्ड पे क्यों एलिगेशन है कि वो एक बोलते ना, एक दूसरे दर्जे का जिसे कौम समझा जाता है उसका वक्फ है, इसलिए इतनी बेचैनी है। यही अगर दूसरे संस्थाओं पे होता तो शायद ये आवाज नहीं आ रही होती। ये एक दबे कुचलों की जो कौम की एक वक्फ है उस पर बहुत आवाज आएगी कि वहां पे। मैं डे फर्स्ट से कहता हूँ करप्शन हो सकता है, करप्शन होगा भी, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। वो सरकार भी करप्शन कर सकती है, कलेक्ट्रेट ऑफिस में भी करप्शन हो सकता है, करप्शन कहीं भी हो होता सकता ही है। है। उसके रोकने के लिए आपके पास कोई पैरामीटर होना चाहिए, उस पर नकेल कस सकते हैं। मगर आप सिर्फ उस ग्राउंड पे पूरे वक्फ बोर्ड को खराब कह देना, उस पे मेरा ऑब्जेक्शन है, क्योंकि वो एक माइनॉरिटी समाज से जुड़ा हुआ चीज है, एक विलेज तबके समाज जी। से। क्योंकि आपने जुनेद कमेटी पढ़ा है सर, सच्चर कमेटी पढ़ा है, क्या दलितों से बदतर अगर किसी कोई जिंदगी जी रहा है तो ये मुसलमान कौम जी रही है। दुरुस्त बात। जहां एजुकेशन नहीं है, जहां लोगों को पंचर वाला कहा जाता है, जहां क्या क्या अल्फाजों से नवाजा जाता है, वो कौम है। ये हम नहीं कह रहे हैं, जो भारत की सरकार ने जुनेद कमेटी बनाई थी उसका रिपोर्ट है कि आप उनकी हालात को देख लीजिए तो आपकी आंखों में आंसू आएगी। क्या दारूवाला साहब ने वो रिकॉर्ड नहीं पढ़ा होगा? बेशक पढ़ा होगा, अगर पढ़ते होंगे तो बिल्कुल पढ़ा होगा कि जुनेद कमेटी क्या कह रही है, ये कौम कहाँ खड़ी है। और उसको उबारने के लिए सरकार के पास कोई प्रो रोड मैप नहीं है कि ये कौम कैसे एजुकेटेड हो, कैसे इन्हें जॉब क्रिएट किया जाए, कैसे मुख्य धारा से जोड़ा जाए। इसके ऊपर हम कभी डिबेट में नहीं आके बोलते ना, हर चीजों को बहका देना। वक्फ का कोई मसला नहीं था, वक्फ को एक मसला बनाया गया, मसला इसे कंट्रोल वहां की सरकार कर सकती थी, मगर एक डिबेट का एक हिस्सा बनाया गया। तो चलिए, बेहतर मैं मानता हूं, जो भी होता है बेहतर ही होता है। कम से कम इस कौम की आवाज आज इस टीवी के चैनलों से, हर चैनलों से तो सुनने में आएगा कि ये कौम कहाँ खड़ी है, क्या दलितों से बदतर है या नहीं है। ये सच्चाई लोगों को सामने आएगी सर। ये भारतीय जनता पार्टी का मैं अप्रिशिएट करता हूँ, यहाँ पे कम से कम मुख्य धारा में बहस का हिस्सा तो बना ही डाल। Right, so let me go across to Ali Darwala साहब. So दारूवाला साहब, जो नासिर साहब ने अभी कहा उस विषय के बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? आप बोलिए। नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। आपको, प्रदीप सर को, संजय द्विवेदी जी, नासिर भाई, आपको सलाम वालेकुम। सब में पहले ये जो डिबेट का जो आज का ओपनिंग जो वक्फ बोर्ड के ऊपर और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो एक ओपनिंग स्टेटमेंट आया है, इंटरिम रिलीफ फॉर द रेवेन्यू कलेक्टर हैविंग वाइड पावर्स, उसको कर्टेल करके जो वक्फ के जो
चेयरमैन होते थे वकफ का, जो बोर्ड एक कमीशन यानी वो खुद एक कमीशन यानी कोर्ट के तहत वो चलता है, उसका जो पूरी पावर्स निकाल के सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू कलेक्टर को दे रहे थे, वो डाइल्यूट नहीं होने दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके अंदर वो कमीशन के साथ साथ रेवेन्यू के अधिकारी को भी साथ में वो बोर्ड के ऊपर इक्वल राइट्स दिया गया है। क्योंकि रेवेन्यू का जो एक अधिकारी होता है, जैसे तहसीलदार, तलाटी, यहाँ पे संजय द्विवेदी जी आपको बोलेंगे, उनको उस जगह का, मोजनी का, 7/12 का, इंडेक्स 2 का, इसका उनको ज्यादा नॉलेज होता है। और ये जो इलेक्टेड नॉमिनीज जो माइनॉरिटी वकफ कमीशन के ऊपर जो आते हैं, उनको रेवेन्यू का इतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता, वो पॉलिटिकल नॉमिनीज होते हैं। अगर ये दोनों बैठ के देखो, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो इतना सिस्टमैटिक जजमेंट है, इसके अंदर दोनों बाजू का सुनकर उन्होंने एक प्रैग्मेटिक जजमेंट दिया है। रेवेन्यू की जहाँ पे बात आती है वहाँ पे कलेक्टर और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और जहाँ पे ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो वकफ के ऊपर जा रहे, वो लोग साथ में बैठ के संयम से वो लोग दोनों काम कर सकते। और वकफ बाय यूजर जो होते हैं, जिनका 5 years प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नीड नॉट बी ऑन द बोर्ड और नीड बी ऑन द बोर्ड एंड ऑल दैट, ये सब टेक्निकल टीदिंग प्रॉब्लम्स है। उसे इन द जब फाइनल ऑर्डर जैसी आएंगी, जैसा नासिर साहब ने कहा, तो उसके ऊपर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो भी कहेगा, वो कोई भी पार्टी हो, पार्टी शिवसेना हो, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रवादी हो, या इंडिया के अंदर कोई भी बड़ी से बड़ी पार्टी हो, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सर आंखों पे मानता है और उसे इन फाइनल उसे फॉलो किया जाएगा। आई थिंक वी शुड लीव इट एट दिस। वकफ का जो है अब नए प्रविष्ट केस है, इज नो पॉइंट डिस्कसिंग, मुस्लिम्स आर वेरी हैप्पी विथ इट। और भारतीय जनता पार्टी ये कोई मुसलमानों की कोई दुश्मन पार्टी नहीं है, हम मुसलमानों को जो मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। मगर जो हमारे नासिर हुसैन साहब ने कहा, क्या सब में गरीब पिछड़े हुए जमात मुसलमानों के होते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटा करेक्शन करना चाहूंगा। ये देश के अंदर सब में ज्यादा लैंड प्रॉपर्टी ओन्ड आर्मी है, नंबर 2 पे रेलवे है, और नंबर 3 के ऊपर वकफ बोर्ड के ऊपर। उनके पास जितनी जगह है उतनी जगह इंडिया में और कोई भी संस्थान सर ज्यादातर कब्रिस्तान है ना, सर ज्यादातर कब्रिस्तान है, तो हाँ बोलिए लैंड है। एट द एंड ऑफ द डे उसका यूज एक अलग है, but it's a graveyard. What do you do with it? तो शिरडी संस्थान हो, सिद्धि विनायक टेम्पल ट्रस्ट हो, बालाजी मंदिर ट्रस्ट हो, उनके पास भी इतनी जगह नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर हिंदुओं में ग्रेवयार्ड नहीं होता। जो जगह का जो एक समूह है हमारे पास, अगर इसको सही ढंग से, सही तरीके से यूज करें, तो मुझे नहीं लगता मुसलमानों को सरकार के सामने कोई भी चीज के लिए जाने की आवश्यकता। But here I would like to ask you one thing. You've spoken very well. I more or less agree with you, Darwaza. But there are two points which Nasir Saab raised, and I would like you to comment on them if you can, if you feel like. एक तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट, और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद आई थी एक जुनैद कमेटी रिपोर्ट, और उसके बीच में आई थी रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट। Justice Ranganath Mishra was a member of parliament and he was asked to look into minority reservations and minority status. Ranganath Mishra ji ne, he more or less agreed with the Sachar committee report on Muslims, and he also recommended that 10% reservation should be there for Muslims, especially backward Muslims, or he has listed out which are the kind of Muslims, and 5% reservations for other minorities. That report was tabled on the floor of the House. The BJP government comes along and they rejected that report. So they said that it was flawed, number one. It did not have, how shall I put it, proper facts, etc. etc. शिवराज सिंह चौहान साहब की एक स्टेटमेंट आई थी उसको लेकर के, और साथ में उन्होंने ये भी कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी नहीं चाहते थे कि जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं उनको रिजर्वेशन मिले वगैरह वगैरह वगैरह. But that's a separate issue. Pandit ji wanted so many things. Have you agreed with all of them? You haven't. Now I want to know from you, why don't you recommend the Ranganath Mishra Commission report, sir? The Muslims are in a bad state. They're in a terrible state. आप उत्तर प्रदेश में जाइए, बिहार में जाइए, आपको इनफैक्ट जो दलित गांव है आज की तारीख में बिकॉज ऑफ रिजर्वेशंस, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट का जो रिजर्वेशन है उसकी वजह से आपको दिखेगा वहां पे एकदम, सर 2 मिनट में दिखता है. मैं तो आपको बोल रहा हूँ, यू डोंट इवन नीड टू डू अ सर्वे, आपको दिख जाएगा कि यहां पर प्रोग्रेस हुई है, यहां पर पैसा आया है, और इस तरफ एक भी पैसा नहीं है. अब आप बोलें सर. दारवाला साहब प्लीज. बिल्कुल राजीव सर, प्रदीप सर, आप लोग जानते हैं
ये रिजर्वेशन और ये 5% 10% कोटा, ये इसके तो मैं एकदम your favorite subject, तहे दिल yes. से खिलाफ हूँ. तो आई वुड नॉट इवन वेस्ट माय टाइम ऑन रीडिंग एनी सच रिपोर्ट. बट यस, नेवरदलेस माइनॉरिटी से सलग जो एक मुद्दा है यहाँ पर, चलो गुड, टुडे द टॉपिक द डिस्कशन इज ऑफ माइनॉरिटी. ये जो सच्चर कमीशन का जो रिपोर्ट आया था उसके अंदर कांग्रेस के रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने एक प्राइम मिनिस्टर का 15 पॉइंट प्रोग्राम को लाया था, और 15 पॉइंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर स्टेट में एक बॉडी बनी थी, उसके अंदर कलेक्टर चेयरमैन हुआ करता था, और उसके अंदर मुस्लिम जो लोग हैं, उसके अंदर जो डिग्निटरीज मींस नामी गिरामी लोग उसके मेंबर्स थे. वो 15 पॉइंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसा क्या उनके ऊपर होने वाले अत्याचार, उनके प्रॉपर्टी के होने वाले कर्ज, ताबा जो बोलते हैं ना, ये जबरदस्ती ताबा, विमेन के ऊपर होने वाले एट्रोसिटीज, इसके अंदर 15 पॉइंट प्रोग्राम को अगर आप थोड़ा ध्यान से उठा कर देखें, जो ऑनरेबल मनमोहन सिंह जी के टाइम में इम्प्लीमेंट हुआ था वो आज भी इम्प्लीमेंटेड है. हाँ, मगर ये बात है कि इतने फियर्सफुली वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा. अगर वो 15 पॉइंट प्रोग्राम्स भी अगर इम्प्लीमेंट होते हैं, मुसलमानों को एक एज अ कम्युनिटी आगे लाने के लिए जो उसके अंदर जो पॉइंट्स रखे गए, अगर वो भी अगर इम्प्लीमेंट होते हैं, तो हमारी बिरादरी के अंदर हमें सरकार से लेने वाले नहीं, ये समाज और ये कम्युनिटी सरकार को देने वाले बनेंगे. तो पूरे जो मुस्लिम मजदूर है, मुस्लिम कारागिर है, ये कंट्रीब्यूशन उनका ये देश के अंदर इतना ज्यादा है राजीव सर, प्रदीप सर, ये कला हुनर से लादी हुई कम्युनिटी है. और बेशक यहाँ पर देश की आज जो 3rd and 4th and 5th पावरफुल इकोनॉमी बनने जा रही है, उसके अंदर मुसलमानों का जो सहयोग है, जो खांदे से खांदा मिलाकर जो ये समाज ने काम किया है, राइट फ्रॉम आजादी के वक्त से लेके आज तक, मोदी जी के साथ में हम लोग साथ खड़े हैं, और सर्वश्रेष्ठ भारत बनाने में ये कुटुंब और ये फैमिली काम करेंगे. दारूवाला साहब, सुप्रीम कोर्ट टुडे सेड द हिस्टोरिकल रॉन्ग्स ऑफ द पास्ट बाय वक्फ बाय यूजर, इसको इंप्लीमेंट करने से हिस्टोरिकल रॉन्ग्स ऑफ द पास्ट उसको रिडीम हो जाएगा. क्या कहना है, जो एस्टिमेट है सरकार की तरफ 8.72 लाख एकर्स में जो प्रॉपर्टीज, 8.72 लाख प्रॉपर्टीज में 4 लाख प्रॉपर्टीज आर वक्फ बाय यूजर, 22 lakh out of 37 lakh acres are waqf by user. So amount of waqf by user is huge. So there was an immediate requirement to stop this waqf by user, and the Supreme Court upheld it. They stood by the government's bill. They stand by the bill. Do you think the wrongs of the past will be redeemed? Darwala sir. I don't know the nitty-gritties and the implementation of this. It's too early. Just आज ही तो रिपोर्ट आया है, उसे स्टडी करेंगे. ये 7 बजे का इंटरव्यू लग गया. We did not have time to go in depth and details. हम लोग पढ़ेंगे, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसके अंदर हमारे पार्टी का क्या स्टैंड है वो हम समझेंगे, and then we'll be able to elaborate and deliberate on this topic, sir. Fantastic. Right. So in effect, what you're really saying is that you personally are against reservation. You would not like to talk about reservation. But since reservation already exists in the country, and the government of India, led by the BJP and Mr. Modi, is for reservation, therefore you would not like to comment on it for fear of being thrown out of the party, which is fine. No, not at all. No, not at all. Okay. See, So don't you think Muslims deserve reservation? I feel not only Muslims, ये देश के अंदर जो भी भारतीय नागरिक है और जिसके पास पैसे नहीं है, जो गरीब और दबे हुए तबके से अगर आता है, उसे रिजर्वेशन देना चाहिए, भले वो कोई भी जाति का हो, वो मुसलमान हो, बुद्धिस्ट हो, कोई भी जाति का हो, इंक्लूडिंग मराठास, ऑल मराठास कुंबीस, मराठा हो, मैं वही बोला, कोई भी जाति का हो, मतलब सब कुंबी मराठा है, सब मराठा कुंबी हैं. यस सर. वो अगर बिछड़े हुए जमात का है, उसको आपसे हमसे ज्यादा रिजर्वेशन की जरूरत है. बल्कि अगर ओबीसी के अंदर भी अगर क्रीमी लेयर है, तो उन्हें हो के दिल बड़ा करके रिजर्वेशन छोड़ दो. जिसको आवश्यकता है, जो फीस नहीं भर सकता, जो गरीब है, उसको दे दो. ये मेरा जाती तौर पे ये मेरा ओपिनियन है. सर, एक बार आपने बोला था, एक बार इसी शो में आपने बोला था, आई हैव दैट फुटेज, इन केस यू वांट आई कैन प्ले इट, बट आई नो यू फॉर अ फैक्ट दैट, जहां तक आपका सवाल है, आप कभी भी अपने बातों से अलग नहीं होते. आपने ये कहा था कि वक्फ बोर्ड की जो सारी जमीनें उठा करके वो हिंदुओं को दे देनी चाहिए, क्योंकि मुसलमानों ने जबरन वो ली है. ऐसा आपने बोला था. डू यू स्टिल स्टैंड बाय दैट? आपने कहा था वक्फ बोर्ड की जो जमीन है वो वापस देश को दे देनी चाहिए. ये आपने कहा था दारूवाला साहब इसी शो के दौरान.
जी बोलिए। सर सुनिए ना मेरी बात। मैं आप ही की बात सुन रहा हूँ सर। ऑन द लार्जर साइड, वन सेकेंड, ऑन द लार्जर साइड आई टेल यू वन थिंग। आप अगर 200 साल पहले जाओ, 400 साल, 800 साल, 900 साल पहले जाओ, ये देश के रहवासी कौन थे? हम लोग खुद कौन से धर्म से बनते, हमारा डीएनए क्या है? जो आज 1500 भी हम लोग ने सेलिब्रेट किया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्थडे, 1500 साल पहले हम कौन थे? ये हिंदू मुस्लिम ये डिवाइड, ये नॉनसेंस है, यूजलेस है, इसके ऊपर डिस्कस करके कोई फायदा नहीं है। ये देश में आके किसने क्या अतिक्रमण किया, क्या नुकसान किया, क्या लोगों का मनोबल तोड़ा, ये इसके ऊपर अभी क्यों डिबेट करें जब अमनो अमान है, मुसलमान खुश है। मोहन जी भागवत इतनी बड़ी स्टेटमेंट कर रहे, क्या ये जो मुस्लिम समुदाय है इनके सहयोग के बगैर ये राष्ट्र सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र नहीं बन सकता? जी। और फिर से जाकर आपस में वाद विवाद ये करके कोई इसमें आवश्यकता नहीं है। बेशक मैं आपसे ये बात डंके के चोट पे कह सकता हूं, जो चीज देखो, हम तो कोई जमीनी मालिक नहीं है, ये देश किसका था, यहाँ के पूर्वज कौन थे, राजा महाराजा कौन थे, ये हम सब जानते। औरंगजेब तो कुछ ईरान से, पर्शिया से, अकबर और शाहजहां ने कुछ अपने गांव से तो यहाँ कुछ लाए नहीं। ये जो था इन्हीं की चीज थी, इन्हीं को हमने छीना और यही इन्हीं को वापस दे दो। ये मैंने एक छोटा रिकमेंडेशन किया था, एंड यस आई स्टिक बाय इट। एब्सोल्युटली। इस्लाम इज माय रिलीजन, बट जो लूटा लूट आपका, और जाति समाज और धर्म मेरा, ये मेरा। Right, so let me go to Dwivedi साहब. So Darwala साहब sticks to his earlier suggestion. Yes, yes. जी द्विवेदी साहब, सुप्रीम कोर्ट का आज जो वक्फ बोर्ड के ऊपर जो फैसला आया है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे सर? प्लीज बोलिए। देखिए, कोई भी कानून है, कोई भी ट्रस्ट है, कुछ भी हो, चाहे वक्फ बोर्ड हो, अगर वक्फ बोर्ड में कुछ गलत लोग हैं, गलत तरीके से काम हो रहा है, तो निश्चित है सरकार को एक्शन लेना चाहिए। आज डीएम को जो पावर थी उसकी जगह उन्होंने चेंज किया, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे अच्छे निर्णय दिए। सुप्रीम कोर्ट ने, खैर अभी आंशिक रूप से है, ये भी कोई जजमेंट नहीं आया है, लेकिन तब भी स्वागत योग्य है। सर इस देश, हमारा देश जो है वसुधैव कुटुंबकम की श्रेणी में आता है। हमारा देश जो है वसुधैव कुटुंबकम श्रेणी में आता है। हमारा किसी जाति, किसी धर्म से, किसी वर्ग से कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए किसी की। और सरकार जो ऐसी होती है जिसको तो किसी से नाराजगी नहीं होनी चाहिए। जब देश के 140 करोड़ जनता जो है वो आपको चुन के भेजती है, उसमें भले आपको 40% वोट दिया हो, 60% वोट आपका अलग गया हो, लेकिन उन्होंने चुन के तो आपको भेजा। जी। तो जब चुन के आपको भेजा है तो निश्चित रूप से हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जितने भी धर्म के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनकी सुरक्षा, उनकी जो एक नारा दिया गया था, रोटी कपड़ा और मकान, उसकी जरूरतें पूरी करना, बेरोजगारी दूर करना, महंगाई दूर करना, ये काम निश्चित रूप से हमारे देश की सरकारों के आते हैं, चाहे मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार, चाहे देश सरकार हो। अब इस जैसे अयोध्या राम मंदिर बनना था, अयोध्या राम मंदिर बनने के लिए कितनी ज्यादा वो चीजें की गई। आखिरी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने तय किया नहीं, राम मंदिर बनना चाहिए। और देखिए हमारा भगवान श्री राम का भव्य राम मंदिर आज इस देश में बन भी गया। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हमारी होती है, इसमें तो हमें गर्व है, क्योंकि अगर संविधान में ये चीजें निहित ना होती तो शायद कोई सरकार, कोई व्यक्ति तानाशाही उतर आता, तानाशाही करने लगता। तो आज की डेट में कम से कम एक चीज निश्चित है कि आज सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कम से कम ना सरकार ना कोई भी तानाशाही नहीं कर सकती है। वो ठीक है कि इन्होंने जो कांग्रेस जमाने में IT डिपार्टमेंट बनाया गया, CBI डिपार्टमेंट बनाया गया, और आपका ED डिपार्टमेंट बनाया गया, चुनाव आयोग बनाया गया, जिसका बखूबी दुरुपयोग आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वो पूरे देश को दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जिस देश में कभी 75 सालों में पार्टियां टूटी होंगी, निश्चित लोग पार्टियों से गए होंगे, निश्चित, चाहे इंदिरा गांधी जी गई हों, शरद पवार जी गए होंगे, लेकिन कभी किसी ने किसी पार्टी का नाम नहीं लिया होगा, चुनाव चिन्ह नहीं लिया होगा। आज देश में क्या हो रहा है? द्विवेदी जी एक बात, ये बिल के माध्यम से क्या मोदी सरकार के इस बिल से क्या ये पब्लिक एनक्रोचमेंट, जो एनक्रोचमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ लार्ज स्केल, इस पे एक रोक,
इस पे एक फुल स्टॉप लग गया है, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सेक्शन को माना वक्फ यूजर। तो पब्लिक एनक्रोचमेंट, ये जो एनक्रोचमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज का एक फुल स्टॉप लग गया है, इसको हम लोग मान सकते हैं। देखिए प्रदीप जी, वक्फ बोर्ड के पास जमीन आई कहां से? पहला तो सवाल ये है, वक्फ बोर्ड के पास, वक्फ बोर्ड में कोई अपने आप तो उग नहीं गया कि अपने आप वक्फ बोर्ड आ गया हो और चलने लगा हो देश में। वक्फ बोर्ड ही बना संविधान के अंतर्गत ही बनाया गया होगा ना, और बना है तो वक्फ बोर्ड में जो जमीनें हैं, जो चीजें आई हैं, वो कहां से आई हैं? अगर वक्फ बोर्ड कह रहे साहब हमको इस पे हमारा कब्जा है, जैसे अभी अंबानी जी का हमारे भाई ने लिया था, उनका जो मकान बना वक्फ बोर्ड की जमीन बना, तो उसे कागज उनके पास है ना। बात यह है कि अगर वक्फ बोर्ड गलत कर रही है तो सरकार क्या कर रही थी, सरकारें क्या कर रही थी? तो उनके पास जमीन जो है, अंबानी जी का मकान है, वक्फ बोर्ड के पास अपनी जमीन के मालिकाना हक है नहीं। अगर मालिकाना हक नहीं है तो हम किसी प्रॉपर्टी को कब्जा ही नहीं कर सकते, किसी प्रॉपर्टी को हम नहीं कर सकते। तो ये निश्चित है, जान लीजिए प्रदीप जी, बजाज जी, कि वक्फ बोर्ड ही बना था, उसमें वो किस रूप में बनाया गया था। आज भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गवर्नमेंट उसको किस रूप में दिखाना चाहती है इसको, ये तो अपनी अपनी सरकारों का नजरिया होता है, देखने का तरीका होता है। कांग्रेस समय किस नजरों से देखा जा रहा था, आज भारतीय जनता पार्टी ने किस नजरों से देखा जा। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं या जो उनके पास मिल्कियत है, वो कहां से आई, वो भी जांच करने का एक विषय है। लेकिन हर चीज तो भारतीय जनता पार्टी की आदत है, हर चीज का शोर शराबा करना, हर चीज को बढ़ा चढ़ा कहना। अब 3 काले कानून आए थे, 4-5 महीने मैंने डिबेट की थी कि नहीं साहब बहुत अच्छा कानून है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी कहते थे बहुत बढ़िया कानून बनाया, 3 किसानों की कानून जो बनाएंगे बहुत बढ़िया बनाएंगे, जबकि उसमें अंबानी अडानी ने उनके वो बन गए थे, उन्होंने अपने अपने गोडाउन बनवा लिए थे बड़े बड़े उसी के अंतर्गत। लेकिन बाद में क्या वो सब 700 हमारे किसान के बलिदान हो गए, इसके बाद उनको वापस दे दिया। लेकिन ये 1913 में बना ना सर, पहला बोर्ड तो 1913 में बना, उसके बाद 1923 में इसको एक कानूनी प्रतिष्ठा जो है वो दी गई। नासिर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? अभी तक आपने दोनों को सुना, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? कुछ थोड़ी सी अलग है जी बोलिए। उन्होंने मैं, क्योंकि मेरे पुराने दोस्त हैं त्रिवेदी जी, तो उन्होंने कुछ संवैधानिक बात की है, तो ठीक है, वक्फ बोर्ड 1954 में संवैधानिक दर्जा मिलता है, ये तो इतिहास में है। और प्लस क्या है, देखिए अनुच्छेद 25-28, अनुच्छेद 29-30, ये सब क्या है, संवैधानिक दर्जा एक माइनॉरिटी को मिला हुआ है। जब आर्टिकल 246 में सूची है 10 to 28, उसके अंदर सारा अंतर्गत है कि मुसलमानों को, माइनॉरिटी को उसमें क्या एंट्री है, वो पूरा डेटा है, उससे किसी को इनकार नहीं है कि वो जमीन कहाँ से आई, जमीन जांच की पड़ियत है या नहीं, ये तो संविधान में उसमें दिया हुआ है। उसमें जांच की तो कोई बात है ही नहीं कि 1954 के बाद कितना परसेंटेज जमीन बढ़ा है, ये आप बताइए तो समझ में आता। कुछ जमीनों को डोनेशन किया गया है, जो डोनर है उसका नाम है, उसमें पूरा रजिस्ट्रेशन है, पूरा डेटा एंट्री है, तो किसी ने कोई कब्जा नहीं किया है। अगर इंक्रोचमेंट आज वक्फ के जमीन पे है तो किसी दूसरे लोगों ने किया है, वक्फ ने। आप आज कहीं भी चले जाए तो वक्फ के जमीनों पे इंक्रोचमेंट है, वक्फ ने किसी के जमीन पे इंक्रोचमेंट नहीं किया है सर। ज्यादातर इंक्रोचमेंट वक्फ की जमीनों को लोगों ने खाया है, हो सकता है हमने ही खाया हो, हमारे ही कौम के लोगों ने खाया हो, हम नहीं कहते कि किसी और के कौमों ने खाया हो। सॉरी, कोई बीच में बोल रहा। जी मालूम है। कैन वी गेट रिड ऑफ दैट साउंड प्लीज? ये बीच में क्या आवाज आ रही है भाई, इसको बंद कीजिए प्लीज। जस्ट शट दिस प्लीज। व्हाट इज दिस साउंड व्हिच इज कमिंग प्लीज? हाँ बोलिए सर, बोलिए ना सर। तो ये संवैधानिक बातें हैं, क्योंकि ये फिर लंबी बातें हो जाएगी संविधान के ऊपर, पर मैं पूरी सच्चर कमेटी की बात मेरे दारूवाला साहब ने किया, तो थोड़ी सी मैं उस पर नॉलेज रखता हूँ। तो सच्चर कमेटी क्या राष्ट्रीय औसत पे शिक्षा के मामले में मुसलमानों की कितनी हालत है, क्या दलितों से बेहतर है या दलितों से खराब है, सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट में मुसलमानों को कितना परसेंटेज है सर,
सर आप बीच में बोलेंगे तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगा। तो कोई- हेलो, कोई बोल नहीं रहा है सर, वो दूसरी आवाज आ रही है कहीं से। देयर इज सम अदर साउंड विच इज कमिंग। जी बोलिए बोलिए सर, आप बोलिए 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 सर, आप बोलिए हाँ, प्लीज नासिर साहब। तो मुसलमानों का एजुकेशन स्तर नीचे है सर, सरकारी नौकरियों में पीछे है सर, ये सच्चर कमेटी में है सर, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं सर। आईएएस आईपीएस आईएफएस कहीं भी आप चले जाएं, उनकी संख्या जितनी वो 15 से 18% मुसलमान में, उस परसेंटेज से बहुत ही बिलो है। दूसरी चीज, आप चले जाएं माइनॉरिटी कॉलेज यूनिवर्सिटी कितना है इस देश में, बहुत ही कम है। आप गिनती करेंगे तो शायद 2-4 काउंटिंग कर पाएंगे। सेकंड, आप आते शहरों के अंदर सर, जितनी भेदभाव इस कौम के साथ होता है, किसी सोसाइटी में मुसलमानों को घर नहीं मिलेगा सर, किसी भेदभाव के वजह से उसे बाहर कर दिया जाता है सर। ये क्यों हो रहा है सर? इसीलिए सच्चर कमेटी कहती है कि मुसलमानों के साथ बहुत बड़ा भेदभाव है, सोसाइटियों में घर नहीं मिलता है, वो एक गट में एक पॉकेट में रहने को मजबूर है जहां गंदगी का ढेर है, क्योंकि उससे बाहर वो जा नहीं सकते हैं, लोग उनको बसने नहीं दे रहे। ये कौन कह रहा है? सच्चर कमेटी कह रहा है सर। तो आज उसके इम्प्लायमेंट के लिए क्या किया गया? कोई काम नहीं किया गया। या इवेंट स्ट्रक्चर कमेटी तब भी 2006 में कह रहा था, मैं आज बीजेपी पे हमला नहीं कर रहा हूं सर, आज कमेटी की बात कर रहा हूं, पूरी ऑफिशियली बात कर रहा हूं। 2006 में स्ट्रक्चर कमेटी कहता है कि राजनीतिक तौर पे भी, पॉलिटिकल तौर पे भी ये कौम पिछड़ गई है। उस समय भी वो हिस्सेदारी नहीं मिल रही थी, आज भी वो हिस्सेदारी नहीं है। तब थोड़ी हिस्सेदारी थी, आज बिल्कुल ही माइनस में हिस्सेदारी है। तब भी हम पॉलिटिकल तौर पे पिछड़े हुए थे, हमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल रहा था, और आज भी हम रिप्रेजेंटेटिव में कम है। तो ये सब सच्चर कमेटी कह रही थी। मनमोहन सिंह ने इसके ऊपर बात की, इस पे कमेटी बनाई, इसके लिए बात हुई कि इसको कैसे ऊपर लाया जाए। तो एनएफडीएफसी एक बनाया गया कि इस राष्ट्रीय अल्पसंख्यक को कैसे हम ऊपर लाया जाए ताकि ये ऊपर आए, इस संस्था को मजबूत किया जाए ताकि ये कौम ऊपर आए। मगर वो संस्था भी आज कमजोर हो गई, ये सुनने को भी नहीं मिलता है कि एनएमएडीएफसी करके कोई संस्था भी है कि नहीं हिंदुस्तान में, मैं तो ये नाम भी भूल गया था। तो आजकल धीरे धीरे ये सारी संस्थाओं पे बात भूल गई, क्योंकि आज कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं सर। जो but do you believe that Modi साहब is the only person who talked about पसमंदा मुसलमान? पसमंदा मुसलमान के इशू अगर किसी नेता ने लिया है पूरे इंडियन इतिहास सिंस इंडिपेंडेंस, क्या आप मानते हैं वो सब प्राइम मिनिस्टर मोदी है कि वी नीड टू टॉक अबाउट पसमंदा मुसलमान, हमें उनके हकों के बारे में सोचना पड़ेगा, हमको अपलिफ्टमेंट चाहते हैं, पसमंदा मुसलमान के अपलिफ्टमेंट। डू यू बिलीव दैट नो अदर नेता एक्सेप्ट मोदी, बिकॉज मोदी जी चिल्ला रहे थे पसमंदा पसमंदा मुसलमान? ठीक है सर। 2014 से आज 2025 में हम लोग हैं, कितना साल हो गया सर? कितने पसंदा मुसलमान मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं सर? कितने पसंदा मुसलमान आईएएस आईएफएस बन रहे हैं सर? कितने पसंदा मुसलमानों के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज खुल गई है सर? कितने पसंदा मुसलमान देश के इस मुख्य, सिर्फ कहते रहेंगे कि कुछ करेंगे, अब कौन करेगा सर? कुछ कमियां हम में थी तभी तो हम 2014 में पिछड़ गए, इससे कोई इनकार तो नहीं कर रहा है कि हमसे कहीं गलती हुई होगी, तभी तो हमें लोगों ने नकारा है, इससे कौन इनकार कर सकता है? पर 2014 में भारतीय जनता पार्टी को इस देश की आवाम पसंदा मुसलमानों ने भी लाया होगा। तो 2014 से 2025 के बीच में पसंदा मुसलमानों के लिए क्या काम हुआ है, क्या वो तो भारत की सरकार या मोदी जी या उनके प्रवक्ता बताएंगे। ये तो मुझे इल्म नहीं है कि उनके लिए क्या क्या काम हुआ, कितने उनके मेंबर बने, कितने एमएलए बने, कितने एमपी बने, कितने डॉक्टर्स बने, कितने, ये सारा डेटा उनके पास होना चाहिए, वो डेटा देंगे। जी डिस्टर्ब हो रहा सर। नहीं आप बोलिए 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 सर, आप प्लीज कंटिन्यू, प्लीज गो अहेड। डिस्टर्ब नहीं हो रहा सर, पता नहीं कैसे आप कह रहे हैं। प्लीज 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 बोलिए नासिर साहब प्लीज। एक्चुअली बीच में लेट टूटता है तो फिर बोलने नहीं आप बोलिए पसमंदा मुसलमान के बारे में बात कर रहे थे मैं मुझे याद है सर, मेमोरी अभी कमजोर नहीं हुई। तो पसंदा मुसलमानों की सिर्फ बातें हो रही है, पर वो इतने आगे नहीं आ रही है सर। ये क्या, ठीक है, ये कौम पिछड़ी हुई है। मैंने पहले ही कहा कि सच्चर कमेटी, जुनैद कमेटी इसी बात को बयान कर रही है जो मोदी जी कह रहे हैं, मगर इसे बढ़ाने के लिए कोई नहीं। हमने तभी कहा ना, सेंसेक्स करो, जाति जनगणना करो, सेंसेक्स से मालूम हो कि हम कहाँ खड़ी है, कौन सी कौम कहाँ खड़ी है। पर उसके ऊपर बात नहीं हो के सेंसेक्स की बजट जो निकाला गया 575 करोड़, जबकि आज से 9 साल पहले ही एक कमेटी बोलती इसमें 13,000 करोड़ की जरूरत है। 575 करोड़ में कैसे काउंटिंग करेंगे वो देखते हैं। खैर ठीक है, अभी इन्होंने बोला ना रिजर्वेशन खत्म कर देना चाहिए,
सिर्फ गरीबों को देना चाहिए। तो मैं कहता हूं सर, दलितों को अभी 200 साल रिजर्वेशन मिलना चाहिए सर। उस कौम पे जितनी जुल्म हुई है ना सर, शायद ही किसी कौम पे हुई हो। दलितों को समाज में सबसे ज्यादा झेलना पड़ा है सर, तो दलितों को झेलना पड़ा है। आपको इतिहास है, बाबा साहब अंबेडकर को पानी के गिलास में पानी नहीं मिलता था, उन्हें ऊपर से गिरा के दिया जाता था, स्कूल के पैदान पे पढ़ाया जाता था, स्कूल के अंदर एंट्री नहीं। तो ऐसे लोगों को रिजर्वेशन का हक है, उनको हक नहीं छीन सकते। उन्होंने कहा ओबीसी क्रीमी लेयर, तो क्रीमी लेयर तो पहले ही से बना है, उन्हें क्यों मिलना चाहिए? जिसको क्रीमी लेयर क्रॉस करते हैं उनको ऑटोमेटिक ही ओबीसी का रिजर्वेशन खत्म हो जाता है, तो क्रीमी लेयर के अंदर ही रहना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को जिसकी जरूरत है, मराठा समाज को जरूरत है तो मराठा समाज को दीजिए, मगर जिस तरह से ये रिजर्वेशन दे रहे हैं, क्या ये सही है? जीआर ला के रिजर्वेशन दिया जा सकता है? ये इतिहास ही रच रहे हैं सर। आपको अगर रिजर्वेशन देना है तो आर्टिकल 9 में आपको शेड्यूल 9 में डालना पड़ेगा। ऐसे कैसे रिजर्वेशन टिकेगा सर? वो Absolutely, and I would like to go to जी आप कुछ बोल रहे थे नासिर साहब, प्लीज फिनिश। आई वुड लाइक टू गो टू दारूवाला साहब। मैं कह रहा हूं ऐसे रिजर्वेशन अगर जीआर लगा के गवर्नमेंट देने लग गई तो संविधान की धज्जियां उड़ जाएगी सर, ना वो कोर्ट में टिकेगा ना कहीं टिकेगा। संविधान का कोई मतलब नहीं रहता है। इस तरह से बहलाने का मतलब नहीं है। ओबीसी समाज वर्सेस मराठा की लड़ाई हो जाएगी तो आपको एक कंप्लीट करना पड़ेगा। मैं पहले से कहता हूं सुप्रीम कोर्ट के कैप को पहले हटाओ, जो 50% का कैप है उसको खत्म करो, 70 से 72% आपको लाना पड़ेगा, तभी आप इनको रिजर्वेशन और हक दे सकते हैं। नासिर साहब, there is no cap, really and truly speaking. That was just part of the observations of the Supreme Court. Supreme Court का ऑर्डर नहीं है, वो इन प्रिंसिपल सर, वो इन प्रिंसिपल है। Actually there is no order. सुप्रीम कोर्ट की आप एक जजमेंट दिखा दीजिए जिसमें ये लिखा हो 50% के ऊपर नहीं होना चाहिए। इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। ठीक है फवाद भाई, आपकी इज्जत है, आप कह रहे हैं, मगर सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा रखा है। वी हैव ऑल एग्रीड टू इट, दैट्स ऑल। सर सबने इस पे एग्रीमेंट कर ली। नहीं जाना है उसका मैं कॉपी आपको जरूर भेजूंगा। सर वो है मेरे पास, है। तो उस कैप के ऊपर हम बार बार कहते हैं संशोधन करिए, पार्लियामेंट में लाइए, शेड्यूल 9 में चीजों को डालिए, तभी आप इनको हक दे सकते हैं। मराठा समाज को हक नहीं मिल सकता है। आप लाख जीआर ले आए, आपको हक नहीं है उनको रिजर्वेशन देने का। So दारूवाला साहब, what Nasir साहब has said makes a lot of sense. How can you have an exception to the rule in the case of Tamil Nadu? Tamil Nadu there is 72% reservation. बाकी जगह पे आपने 50% कैप लगाया हुआ है ना। the Congress is right over there. सर एक अमेंडमेंट लेकर के आई ना कॉन्स्टिट्यूशन में, 50% का कैप हटाइए, करिए 72% जो भी तमिलनाडु में है, और मेक दैट आल्सो इलीगल। बोलिए कि वहां पर भी सिर्फ 50% लागू होगा। दारूवाला साहब प्लीज। दारूवाला साहब, आई कैन ओनली हियर परकशन। ऐसा लग रहा है कोई तबला बजा रहा है सर आपके माइक पे। तो दारूवाला साहब, ये वापस प्रॉब्लम है। दारूवाला साहब, now can you talk now? Yeah, am I audible now? Perfect. बोलिए सर, बोलिए। Yeah. No, nothing. I am not well versed with this reservation subject. जैसा नासिर भाई बोल रहे हैं, ये कोर्ट में सस्टेन होएगा नहीं होएगा, ये देने का मार्ग सही है नहीं है। राजीव साहब बिल्कुल, ये बिल्कुल मेरा विषय नहीं है। मैं इसके ऊपर हकीकत में स्टडी नहीं किया। मैं कोई टिप्पणी करना ये भी गलत बात हो सकती है। मेरा टॉपिक, मेरा सब्जेक्ट ही अलग है। मेरा माइनॉरिटी का काम है पूरा, उसके ऊपर मैं काम करता हूँ। तो माइनॉरिटी पे बात करो ना। माइनॉरिटी मेन स्ट्रीम में कैसे आएगी? तो ये बात से माइनॉरिटी मेन स्ट्रीम में कैसे आएगी, और जितनी भी माइनॉरिटीज हैं उनकी अपलिफ्टमेंट कैसे होगी, वो बताओ ना सर। बोलिए प्लीज। सर अपलिफ्टमेंट करने के लिए मेरा जो विचार है, जो हमारी जो संघ काम कर रहा है, वो ये चाहता है, और हमारी ये विचारधारा है, मुसलमानों को मुख्य प्रवाह में लाने के लिए हमें अल्पसंख्यक दर्जा का आवश्यकता नहीं है। हमारा जो नंबर है 25, लगभग 25 करोड़ लोक संख्या जो आज भारत में है, ये माइनॉरिटी नहीं हो सकती। हमारे में जो गौर गरीब है, उसको ये मोदी जी के जितने फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, उनके अंदर सारा जो लाभ एक गरीब हिंदुस्तानी को मिलता है, वो मुसलमानों को मिल रहा है। जी, बिलो पॉवर्टी लाइन सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के सर्टिफिकेट है, आपको उसके अनुदान, गैस का सब्सिडीज, आपको लाइट बिल में राहत, एडमिशन के अंदर फीस माफी,
और जो 50-75 इयर्स के ऊपर जो है आयुष्मान भारत, जितने मोदी जी के प्रोग्राम्स है वो जैसे यहाँ पे आम नागरिकों को मिल रहा है वैसे ही मुसलमानों को मिल रहा है। वही लाइट, वही नल का जल, वही आवास, वही जो हमारे को घर गरीबों को हम जो दे रहे हैं उसके अंदर मुसलमानों को जो भी मिलना है वो मिलते रहा है। और जो मुसलमान इतना मेहनती कौम है, मैं कहता हूँ इतना मेहनती कौम, इतना वो एक व्हाट यू से दे आर गॉट सो मच प्राइड, वो ऐसा कोई दिए हुई चीज लेते नहीं है, वो मोहन समाज को भागवत। देने में वो लोग गर्व मानते हैं, लेने में नहीं। अली मैं दारूवाला जानता साहब, हूँ, मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। नासिर भाई भी अगर आप पूछेंगे उनको, अगर हमारा हक नहीं बनता है हम वो चीज को ठोकर मार देंगे। मोहन भागवत जी हमेशा कहते हैं, आज भी उन्होंने कहा, आई विल नॉट अलाउ इंडिया टू बी डिवाइडेड, मैं डिवीजन किसी भी हालत में होने नहीं दूंगा। मोहन भागवत जी बोले अर्लियर पार्टीशन जो डिवीजन है उसको भी सुधारने का कोशिश करेंगे, मोहन भागवत जी कह रहे। बट असलियत में ग्राउंड में है क्या? पसमंदा मुसलमान, मोदी जी जैसे सैयद नासिर हुसैन साहब बोल रहे हैं 2014 से कितने पसमंदा मुसलमान को आपने उठाया, अपलिफ्टमेंट किया है, कुछ डाटा है दारूवाला साहब? आप सिर्फ बोलते हो, होता कुछ नहीं है। मोदी साहब बोल रहे हैं पसमंदा मुसलमान, कुछ होता नहीं है। भागवत साहब बोल रहे हैं अनडिवाइडेड इंडिया, बट होता नहीं है। दारूवाला साहब एग्जैक्टली देखो, अभी आपने इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक यूज किया, पसमंदा कोई समाज नहीं है, वो एक कारागिर स्किल तबका है हमारे मुसलमानों में। जो कोई भी काम करता है उसे एक पसमंदा, उसको एक ओवरऑल एक उनको एक ये दिया है दर्जा। ये दर्जे के अंदर जो स्किल लेबरर्स है, जो एक समुदाय के नीचे है, जैसा कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो जरी का काम करते हैं वो पसमंदा एक जमात है लखनऊ के अंदर। वैसा जो भी काम स्किल हाथ से करने की जो काम है उसे पसमंदा मुसलमान कहते हैं। जो हमारे समाज के लोग हैं, जो हमारे गुट के लोग हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उनको इन्वॉल्व करके उनके कारागिरी को एक प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए मोदी जी और हमारा पूरा ये सरकार इसका मोदी जी नहीं, हमारी जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और जो हमारे सहयोगी दल के, वो लोग इस काम के अंदर लगे हुए हैं। ये एक स्पेशल जो एक समाज था पसमंदा, जिसके अंदर मैं गया था लखनऊ में, जो जरी का काम करते, वो इसके बारे में ये बात माननीय इंद्रेश जी ने आज से 8-9 साल पहले ये माननीय मोहन भागवत जी को बताया था। तो उसको चलते हुए जिसके हाथ में स्किल है, स्किल को आगे लाके और जो मेड इन इंडिया को ये इसको प्रमोट करने के लिए ये समाज को पूरा ये सरकार एकजुट होकर इसको आगे फ्रंट लाइन में लाने की कोशिश कर रहा है। जी, तो आपके कहने के मुताबिक जहां तक के मोदी सरकार का प्रश्न है दारूवाला साहब, या स्कीम ये है और प्लान ये है कि 2047 तक सारी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी और राम राज आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, सब लोग खुशहाल होंगे, सब लोग बढ़िया होंगे, सबके पास नौकरी होगी, सबके घर के ऊपर, सबके सिर के ऊपर छत होगी। राम राज्य आ जाएगा, नहीं आएगा, रेजर्वेशन समाप्त होगा। मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। चलिए नहीं आएगा, बोलिए सर, तो क्या होगा सर? I never said like this. Okay, so I thought that is what you were hinting at, isn't it? I mean, isn't that what you're working towards? 2047 India will be a developed country. इसके अंदर रिजर्वेशन को और एक विशेष समुदाय का राज आएगा, ये ऐसा मैंने किधर भी मेंशन नहीं किया है। मैंने कहा तो फिर क्या होगा सर, ये तो बताओ ना, होगा क्या? इंडिया, वी आर मूविंग इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, विद सेल्फ सस्टेन। खाद्य हमारे देश में भरपूर है, हम इंपोर्टर्स से एक्सपोर्टर्स बनेंगे। और जो हम 12 नंबर पे थे, आज हम टॉप 5 के अंदर आए हैं। हम नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बनती आवश्यक, हम लोग, हमारी उतनी क्षमता है, हम लोग सर्वश्रेष्ठ भारत बनने जा रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ भारत मतलब वेरी शॉर्टली, वेरी शॉर्टली, मतलब बहुत जल्द हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ। For your record, last week you can Google and see 25 crore people have been elevated. Yeah, I've been hearing that for the last 10 months. वो 10 महीने से पढ़ रहा हूँ सर मैं। Middle class. There was a middle class and now there is a new middle class. That is 25 crore people have been elevated from below poverty line and they have come in the middle class line, which is a fact. दारूवाला साहब, आज इंडो पैक मैच कल जो हो गया, क्या मोदी साहब ने पूरे टर्नओवर कर दिया? बिकॉज द्विवेदी जी बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, सब ने कहा कि मैच नहीं खेलना चाहिए।
मैच खेलकर पाकिस्तान को हराकर हैंडशेक करने से मना करना और डेडिकेट करना द विक्ट्री टू द इंडियन आर्म फोर्सेस, टू डेडिकेट टू द पहलगाम विक्टिम्स, डू यू थिंक मोदी जी के मास्टर स्ट्रोक है? किस प्रकार से देखते हो दारू वाला साहब? You know, last 1 month I'm the only guy, I'm the only person who's been going on all the channels and saying मैच Yes, को yes. खेलना चाहिए, बिल्कुल. खेल को, कला को और संगीत को, इसको ये सारे चीजों से ऊपर रखना चाहिए। कला, संगीत और क्रीड़ा, ये तीन चीज आपस में जो बैर है ये ब्रिज बनाने का काम करेगा। और दूसरी बात मैं आपको फिर से कहता हूं, ये सब चीजों से बढ़कर अगर कोई भी एक सुराख है जहां पे दोस्ती का पहल कर सकते, मैं मानता हूं अगर पाकिस्तान के साइड से कोई पहल नहीं है, अगर हिंदुस्तान के साइड से कोई पहल है तो वो उसका हम स्वागत करते हैं। बेशक जो हमारे 26 सिंदूर जो इनने मिटाया वो तो कभी भी हमारे दिलों से वो उसकी घृणा जा नहीं सकती, मगर कहा तो पहल करना चाहिए सर। और अगर हम पहल नहीं करेंगे और एक अमनो सर, ये अमान पहल की थोड़ी हुई। आशा जैसा हम एक हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे तो ये शुरुआत सर कभी हाथ नहीं होगी। बढ़ाया ना, हाथ नहीं बढ़ाया ना, हैंडशेक नहीं किया ना सर। ये हैंडशेक की वैसी बात नहीं कर रहा हूं, मैं लिटरल मीनिंग नहीं बोल रहा हूं। आप जाके गले मिलिए और हैंडशेक करिए। बोला खेल के माध्यम से, क्रीड़ा के और कला के माध्यम से अगर कोई पहल हो तो आपके मुताबिक which can be made, why not do it? And as I had said, Rajiv sir, Pradeep sir, you cannot give Pakistan a free run। और So why didn't we आप shake देखिए hands? हमने क्या किया, So हमने why उनको didn't हरा Surya दिया। Kumar Yadav हमने shake hands? उनको वॉर में भी हराया, हमने उनको खेल में भी हराया। So sir, why didn't we shake hands? We are playing. So why international norm is there? It's not a rule that after the toss the two captains shake hands. After the game is over, the losing team congratulates the winning team. They all shake hands. Our boys refuse to shake hands with the Pakistanis. Sir, 100%। मैं तो 100% ये what? कह रहा था, क्या हाथ अगर बगल में काला बैंड बांध के भी अगर ये लोग खेल करते ना निषेध व्यक्त करने के लिए, तो वो गलत नहीं होता। all right, fine. So Dwivedi ji- I think Nasir Saab wanted to say Achha. something. Nasir Saab wanted to intervene, and then we'll go to Dwivedi Saab. मैं थोड़ा सा बस, क्योंकि मैं बीच में बोल रहा हूँ। Sorry, बोलिए। इन्होंने कहा कि मोहन भागवत साहब ने कि मैकमोहन चर्चिल ने कहा था कि हिंदुस्तान की सरकार हिंदुस्तानी नहीं चला सकते, ये देश बढ़ जाएगा। जब उनके बारे में कह रहे थे तो कुछ उन संगठनों का भी नाम ले लेते जो कह रहे थे कि ये हिंदुस्तान नेपाल के राजा को दे दो, ये सरकार नहीं चला सकते हिंदुस्तानी, उसका भी नाम लेते तो कितना बेहतर लगता। मैं नाम बोलूंगा तो शायद इन्हें पसंद नहीं आएगा। सर, बोलिए। सावरकर क्या कहते थे, हिंदुस्तान के लोग हिंदुस्तान नहीं चला सकते, जी। इसे नेपाल के राजा को दे देना चाहिए। अपने लोगों पे भरोसा नहीं था। क्यों नहीं भरोसा था? हिंदू महासभा क्या कह रही थी उस वक्त कि ये सरकार हिंदुस्तानी नहीं चला सकते। है वो बात अब खत्म हो गई। अभी इन्होंने क्रिकेट की बात कही है तो मेरी आवाजों में बड़ी गुस्साहट है, गुस्सा झलक जाती है। हम ऐसे लोगों के साथ खेल रहे हैं जिसके हाथ खून से रंगे हुए हैं। 26 हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया गया। बेशक। इसके वो कहते थे हमारे खून में सिंदूर बह रहा है, तो ये खेल कैसे हो गया? आप बोलते हैं हमने उसे हरा दिया, उसे हराया नहीं है सर, उसे आपने हजारों करोड़ों की मदद कर दी। वो पैसा कहां आएगा? फिर हमारे माँ बहनों के सिंदूर लूटने के लिए वह काम आएगा। पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को हजारों करोड़ का फायदा उसके हारने के बाद भी मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है? क्योंकि हम उनके साथ खेल रहे हैं। वो हारता है तब भी हजारों करोड़ का फायदा उसका हो रहा है। तो ऐसे हम देश के लोगों पे क्या कहेंगे? उन लोगों से क्या हम आंख मिला पाएंगे जिनके सिंदूर उजड़ चुके हैं? आप कहते थे खेल, बात और सिंदूर, बात और पानी एक साथ नहीं बहेगा, आतंकवाद और पानी एक साथ नहीं बहेगा। आज खेल एक साथ कैसे हो गया? क्योंकि साहब का लड़का आईसीसी का चेयरमैन है, इसलिए आपने उस खेल को क्यों नहीं मना किया? बट इसके हाथ खून से रंगे हुए, आपने कैसे उनको बॉल फेंका और आपने उनके बॉल से कैसे बैटिंग कर ली? आपकी जमीर क्यों नहीं जागी? क्या देश में पैसा जरूरी है कि देश की अस्मिता जरूरी है? बट सैयद नासिर हुसैन साहब, नहीं, सुन लीजिए कार्ति चिदम्बरम सपोर्ट कर रहा था, बोलते इंडिया पाकिस्तान खेलना चाहिए।
कार्ति चिदम्बरम कह रहा था इंडिया पाकिस्तान खेलना चाहिए, राजीव शुक्ला कह रहा था इंडिया पाकिस्तान खेलना चाहिए। की निंदा करता हूं, अगर उन्होंने बोला है सपोर्ट करता हूं, उनकी निंदा है। पूरे देश के लोग थूकेंगे उनके चेहरे पे, क्योंकि मां बहनों की सिंदूर उजाड़ने वालों के साथ खेल नहीं होना चाहिए। उनको हजारों करोड़ फिर आतंकवाद फलने फूलने के लिए नहीं देना चाहिए। कौन देश के लोग तैयार होंगे जिनको हजारों करोड़ का फायदा हो रहा हो हमारे साथ खेलने के लिए? लात मारते हैं ऐसे दोस्ती पे, लात मारते हैं ऐसे आतंकवादी देशों पे जो हमारे मां बहनों की इज्जत लूटता हो, हमारे सिंदूर उजाड़ता हो, हमारे देश के अस्मिताओं पे हमला करता हो, हमारे देश के अंदर खतरा पैदा करता हो। ऐसे लोगों के साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए, ना कोई खेल होना चाहिए। क्यों खेलना चाहिए हमें? क्या उनको पैसा कमाने के लिए? राइट। क्या सो मिला हमें? सर वो आईसीसी के चार्टर में हम सेक्रेटरी है ना। नहीं, बंद कर दीजिए ऐसे खेलों को। तो वी शुड हैव टू बॉयकॉट द अड्डा एशिया कप। देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता सर, देश सबसे बड़ा है जी, दुरुस्त बात, आई एग्री विद यू। बीसीसीआई हमारे देश से बड़ा नहीं हो सकता। द्विवेदी जी, संजय राउत, उद्धव बाला साहब ठाकरे का सिंदूर हर महिला कार्यकर्ता भेजेंगे मोदी साहब के पास, मगर मोदी साहब ने पूरे टर्न अराउंड कर दिया। मैच में पाकिस्तान को हरा दिया और शेक हैंड करने से मना कर दिया, और आगे जाकर कहा ये पूरे मैच का जीत हम इंडियन आर्म फोर्सेस को देते हैं, हम विजय इंडियन आर्म फोर्सेस के नाम पर है, और जो विक्टिम्स ऑफ पहलगाम है उनके। तो क्या मोदी साहब ने इसको टर्न अराउंड किया? द्विवेदी जी सर, हम लोग बातचीत अभी कर रहे हैं, तो हमारी बातचीत में अगर प्रेम ना हो तो उस बातचीत में कोई फायदा है? देश में क्रिकेट मैच खेला जा रहा है और टीमें एक दूसरे से हाथ में मिलाए, ये कैसा खेल? हम तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति समझ ही नहीं पाए। जो भारतीय जनता पार्टी एक सांसद को नहीं ले सकती थी, एक सांसद को उन्होंने नहीं लिया, सरकार छोड़ दी, वही आज कह रही है कि नहीं साहब, अगर हाथ नहीं मिलाए तो हाथ नहीं मिलाया तो दिल से दिल कहाँ मिले? कहाँ से प्रेम आया? जो वही हाथ नहीं मिलाता है जिनके आपस में कटुता होती है। आप देख लीजिए पूरे देश में 140 करोड़ जनता है, आप भी देख लीजिए, अगर हम हाथ नहीं मिला रहे आपसे या दुआ सलाम नहीं कर रहे हैं, नमस्ते नहीं कर रहे हैं, इससे मतलब हमारे अंदर कटुता है, और उस कटुता की भावना में अगर खेल खेला जा रहा है, वाह भाई भारतीय जनता पार्टी, चिट्ठी मेरी पट मेरी अंतर मेरे पास। लेकिन द्विवेदी जी ये तो बताइए कि आज संजय राउत जी ने कहा है कि पाकिस्तान को तो पैसा दे दिया गया था, फिक्स्ड मैच है, ऐसी उनकी स्टेटमेंट आई है सर। संजय राउत जी इसका जवाब तुम्हारे संजय राउत जी दे देंगे ना, वो पत्रकार हैं, उनको पास कहीं न्यूज आई होगी, वो निश्चित उसका खुलासा करेंगे। उसमें कोई ऐसी बात थोड़ी ना, अगर उन्होंने कहा है तो आप उनसे पूछिए कि ये चीज आप कहां से लाए। तो द्विवेदी जी ये बताइए कि क्या भारतीय टीम का यानी कप्तान का और कोच का एक बार फिर पूरी अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने पहलगाम आतंकवादी हमले के ऊपर ध्यान केंद्रित करना पाकिस्तान को हराने के बाद ज्यादा अच्छा था, या हिंदुस्तान का बॉयकॉट करना एशिया कप को ज्यादा अच्छा होता? आप बताएं सर। तो जरूरत 50 सांसद जो भेजे गए थे देश के बाहर, उनमें क्या पैसा सरकार ने खर्च किया था भाई? तो रोज पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खिलाइए, रोज हराइए, तो क्या जरूरत है सर सब करने की नाटकबाजी? जो भारतीय जनता पार्टी नाटकबाजी कर रही है, 50 सांसद 55 सांसद, कितना पैसा उन पर खर्च हुआ? बाहरी देशों में गए थे कि सब पाकिस्तान आतंकवादी देश है, पाकिस्तान को आतंकवाद बंद करना चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर हमने चलाया, और 2019 हमने सर्जिकल स्ट्राइक हमने की, हमने फलाना किया, धमाका किया। तो जब हराने उनको है तो रोज क्रिकेट मैच खिलाइए, रोज क्रिकेट मैच खेलिए जी, दुरुस्त बात। उनको बुलाइए, मुंबई बुलाइए, दिल्ली बुलाइए, रोज क्रिकेट मैच खिलाइए। किसने मना किया सर? जी नासिर साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? अगर मैं हो सकती है तो रोज क्रिकेट मैच कराइए आप सर। एक सेकंड सर, नासिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड बस। हाँ बोलिए। देखिए मैं दूसरी बात द्विवेदी जी, नासिर साहब को बोलने देना, एक सेकंड बस, उसके बाद वापस आता हूं आपके पास, एक सेकंड बस। हाँ बोलिए नासिर साहब। मैं उन्हीं के बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। अगर आपने अभी इनसे एक सवाल किया कि उनको हराने से ज्यादा नाम होगा या खेलने से होगा,
अरे हारने से उनका कोई नाम ज्यादा नहीं होगा। अगर हम उनकी बाइकाट करते तो पूरे दुनिया में एक मैसेज जाता कि भारत ने एक आतंकवादी देश के साथ खेलने से इनकार कर दिया। जी पूरी दुनिया में डंका पिट जाता कि हिंदुस्तान की एक हिम्मत थी कि दुनिया के हर रूल को तोड़ते हुए एक आतंकवादी देश से खेलने से मना कर दिया। दुरुस्त बात। ये एक मैसेज जाता, पर इन्होंने उसे बड़ा बना दिया सर। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम तमाम लोग उनकी मजम्मत करने में लगे हैं, हम उनकी चेहरे से नकाब उतारने में लगे हैं। हमारे एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डेलीगेशन रशिया से लेके अमेरिका तक, सऊदी अरब से लेके कतर तक तमाम मुल्कों में जा रही है, बहरीन जा रही है। हम उन्हें उनके चेहरे से नकाब उतारे। और आप कल खेल कर क्या बताना चाह रही कि आप एक साथ आ गए इंडिया पाकिस्तान मैच, सिर्फ पैसा। हम हिंदुस्तान के लोगों को पैसे से नहीं तौल सकते। उनकी अस्मिताओं पे जो कल जोर हुआ है, उनकी जीत की फीकी पड़ गई सर। वो किसी ने कोई लाइव नहीं देखा, आप देखे होंगे तो व्यू देख लीजिए कल कितना आया, और इससे पहले के मैच का व्यू देख लीजिए, आपको सच्चाई मालूम हो जाएगी। इतनी बड़ी बेइज्जती इन्होंने आज हमारे मुल्क में कराई है, जिसकी कई, इनको देखिएगा इलेक्शन, बिहार की इलेक्शन में इसका जवाब मिलेगा। वहां की मां बहनें सिंदूर का जवाब देगी कि क्या हुआ है। नासिर साहब एक चीज तो है, नासिर साहब और द्विवेदी जी, सुन लीजिए। जी जी जी, एक चीज तो है, रंग भेद के खिलाफ जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, हमने साउथ अफ्रीका का बॉयकॉट किया हर जगह। मैं आपको बता दूं, आप तो बहुत छोटे हो गए उस वक्त, आप तो बच्चे हैं सर, आप तो पैदा भी नहीं हुए उस वक्त। सर इंडिया डेविस कप के फाइनल में पहुंचा था, द इंटरनेशनल टेनिस टूर्नामेंट। फाइनल में हमारे अपोनेंट थे साउथ अफ्रीका। We refused to play South Africa. We gave up. We said आप डेविस कप लीजिए, we will not play. अब आप बोलें सर, प्लीज गो अहेड। सर क्योंकि आपके स्क्रीन पे अभी मोदी जी की फोटो चल रही है और जी। नीतीश कुमार बाजू में है, मैं बिहार इलेक्शन का कोऑर्डिनेटर भी हूँ, तो मुझे उस पर कुछ एक और बात मुझे याद आ गई जी कि 10,050 एकड़ जमीन किसको दिया है सर बिहार में, गरीबों से लूट के, जहां पे वो एयरपोर्ट का फीता काट रहे हैं, वो अडानी को दिया है 33 इयर्स के लिए सर। अब प्राइस कितना है? सिर्फ 1 रुपया। गरीबों का जमीन 1 रुपये में किसको दिया? अडानी को। क्या ऐसे लोगों से आपको लगता है कि ये धन्य सेठों से ये देश चलाएंगे? और वहां पे किस लिए दिया? सिर्फ 2400 मेगा पावर प्लांट लगाने के लिए। और उन्हीं गरीबों को वो बिजली का दर बेचेंगे 6 रुपए से 7 रुपया, जो महाराष्ट्र और यूपी में हमारे त्रिवेदी भाई बैठे हैं, जहां से 3 से 5 रुपया यूनिट है। वहां बिहार में उन गरीबों को यही अडानी उनसे फ्री में जमीन लेता है, उन्हें मार पीट के लेता है, डरा धमका के लेता है, सिर्फ 1 रुपये में। क्या ये इंसाफ है? क्या बिहार के लोगों के साथ स्कैम नहीं है? उन गरीबों को पैर, आप बोलते हैं ना, पर्दों के नीचे ढक दे रहे हैं, उन्हें बाहर आने नहीं दे रहे हैं, उनको कैद कर दे रहे हैं। क्या बिहार के लोग उन्हें वोट देंगे? जो ये लाल रिबन काट रहे हैं, लाल फीता काट रहे हैं, अडानी को उपा रहे हैं, क्या वहां के लोग इन्हें माफ करेंगे? जो गरीब किसानों का जमीन लूटा है, जिसपे 10 लाख पेड़ लगे थे, उस पेड़ को भी कब्जा कर लिया, क्या ऐसे लोगों को माफ किया जाएगा? इन गरीबों के साथ राइट। सो लेट्स गो टू जुल्म है, द्विवेदी साहब। द्विवेदी साहब आप बताएं सर। द्विवेदी साहब 1974 में, जैसे मैंने बताया आपको, इंडिया वाज टू प्ले साउथ अफ्रीका इन द डेविस कप फाइनल। इंदिरा जी प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी। शी सेड नो, nothing doing. We will give up the Davis Cup. We will not play with South Africa. अब आप बोलें द्विवेदी जी, क्या कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए था भाई? बताइए। सम्राट बाला साहब ठाकरे ने आज से 20 साल पहले ही पाकिस्तानी को आतंकवादी देश मानकर मुंबई और दिल्ली में मुझे पीछे खो दी गई थी सर जी। तो शायद मुझे याद है कि मैं शिवसेना में था उस समय, तमाम लोगों ने बुराइयां की थी, चैनलों बुराइयां की थी। पहले इतने चैनल नहीं होते थे, छोटे चैनल होते थे, अखबार होते थे, अखबार में तमाम बुराइयां आई। अभी रिसेंटली 2-3 महीने पहले हमने भारतीय जो एनडीए सरकार है, इन्हीं की हमने सुना कि हम पानी बंद किए दे रहे हैं, हम आतंकवादी देश, हम 50 सांसदों को विदेश भेज रहे हैं। उनका पैसा खर्च किसने किया? सरकार ने। तो अगर क्रिकेट मैच से हम देश को हरा सकते हैं सर, पाकिस्तान को, बड़ा भाई हमने लूट ली सर, पहलगाम का बदला ले लिया, तमाम जगह का बदला ले लिया, तो भाई कल लखनऊ में एक मैच कराइए सर,
दिल्ली में कराइए, मुंबई में रोज मैच करा दीजिए। बस पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है उससे बात कर लीजिए और पाकिस्तान टीम को यहाँ बुला लीजिए, पर डे मैच कराइए सर। चलिए उनको रोज हराइए और अच्छा लगेगा सर। बाकी चीजें करने की क्या जरूरत है, नाटकबाजी करने की जरूरत, फालतू जरूरत, 50 सांसद भेजने की जरूरत, तमाम बातें करने की जरूरत, सिंधु का पानी बंद करने की जरूरत, पानी बंद करने की क्या जरूरत है, सब बंद कर, सब खत्म कर दीजिए सर। द्विवेदी जी, कारगिल युद्ध कैसे हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको बुलाया आगरा समिट में, आगरा आए, गए, कारगिल युद्ध हो गया। उसके पहले हुआ था सर कारगिल, कारगिल उसके पहले हुआ था, कारगिल उसके पहले हुआ था, 1999 में हुआ था। पहले हुआ था, लेकिन हुआ तो उन्हीं जब वहां पे गए थे वो मिलने, राजीव गांधी जी गए थे, उसमें स्थिति आपने देख ली थी, क्या स्थितियां हैं। अटल जी बस लेके गए थे लाहौर और उसी वक्त कारगिल हो गया। कह रहा हूँ क्या स्थितियां हैं आप खुद देख रहे हैं जी। पर द्विवेदी जी बार बार आप कह रहे हैं कि नेपाल लाइक सिचुएशन, नेपाल जैसे सिचुएशन, पाकिस्तान के नेपाल जैसे सिचुएशन यहाँ पर आएंगे। द्विवेदी जी नेपाल जैसे सिचुएशन यहाँ पर आएंगे। उद्धव बाला साहब ठाकरे कह रहे हैं, शरद पवार साहब आज कहा, उससे पहले बिहार में सब कह रहे हैं कि बिहार, अखिलेश यादव, जितने इंडिया अलायंस के पार्टनर है सब कह रहे हैं कि नेपाल जैसे सिचुएशन वोट चोरी की वजह से होगा। क्या होगा, क्या दिख रहा है आपको नेपाल जैसे सिचुएशन इस देश में होना? द्विवेदी जी देखिए, जब तानाशाही सरकारें करने लगे, और मुझे याद है सर 75 साल में देश में कितने कुछ भी रहे हों, प्रधानमंत्री रहे हों या जो भी हमारे रहे हों, कभी इस तरह की तानाशाही आज देश में चल रही है सर, वो तानाशाही इससे पहले कभी नहीं। आप हर चीज में देख ली, अभी बिहार को उदाहरण दिया, 1 रुपए में बिहार में जमीन दे दी। किसको जमीन दी? अडानी जी को। अरे संजय द्विवेदी को दे देते, नाजिर जी को दे देते, किसी को दे देते, या किसी ऐसे व्यक्ति को दे देते जो इनके संपर्क में नहीं था। बात समझ में आती। देखिए, आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो यहाँ पर व्यापार करने आई थी, बहुत ही झुके झुके शब्दों में आई थी। वो उसने कहा था मुझे तो इस देश में व्यापार करना है, और व्यापार उन्होंने शुरू कर दिया, जहाजी बड़ा लेके आए थे, और व्यापार करते 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 देश में कब्जा कर लिया उन्होंने। तो सर ऐसा है, जब आप किसी प्राइवेट व्यक्ति को, चाहे औद्योगिक घराने को, कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई हो, अगर मैं नेता हूं तो मेरे दिमाग में नेताएं वाली बातें आएंगी। अगर मैं इंजीनियर हूं तो मैं इंजीनियर वाली बात करूंगा, डॉक्टर हूं तो डॉक्टर वाली बात करूंगा। अगर उद्योगपति है तो उद्योगपति अपने फायदे के लिए सोचेगा, चाहे वो 1 रुपए का फायदा करने की सोचे, चाहे 100 रुपए फायदा करने की सोचे। अगर हम इस तरह की चीजें देश में बढ़ावा दे रहे हैं तो निश्चित आप जान लीजिए देश का भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ, कहने का मतलब ये हुआ नहीं है, क्योंकि 3 काले कानून जो थे वो रद्द न। तो सर कहने का मतलब ये हुआ बने थे लोगों के उन भंडार कि एशिया कप, हमें एशिया कप का बहिष्कार करना चाहिए था। और शायद जो महंगाई दर आप देख, जी 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 द्विवेदी जी, उससे 4 राइट, वी रियली रन आउट ऑफ टाइम। महंगाई जी बढ़ गई होती। द्विवेदी जी, thank you so much. Nazir Saab, thank you so much. But Nazir Saab, you're getting a lot of support from a lot of viewers. Everybody says we should have, most people say we should have boycotted the Asia Cup. एशिया कप में नहीं खेलना चाहिए था। और अगर हम लोग बॉयकॉट करते एशिया कप को, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, तो एशिया कप की कोई अहमियत नहीं रह जाती। वेरी फ्रैंकली, अगर इंडिया एशिया कप में नहीं होता ना, तो इट वुड हैव बीन अ टूर्नामेंट ऑफ स्कूल बॉयज, स्कूल के बच्चों की टूर्नामेंट होती, सीधी सादी बात है। अगर आज हिंदुस्तान बॉयकॉट कर देता है एशिया कप को, एंड वेरी फ्रैंकली आईसीसी वुड हैव बीन फोर्स्ड टू कंसिडर कि क्या पाकिस्तान को आईसीसी में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। बट फॉर दैट वी नीड टू बी स्ट्रांग। आई एम अफ्रेड वी आर नॉट। एनीवे, दैट्स माय ओपिनियन। प्रदीप जी differs from me, and I respect Pradeep ji's opinion. I respect everybody else's opinion also. But Thank you. यूबीटी द्विवेदी साहब के पार्टी ने बहुत एग्रेसिव स्टैंड लिया था। जी। सिंदूर भेजेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के पास। उद्धव जी का जो घोषणा था, एक जबरदस्त एक विरोध था, जबरदस्त विरोध था। और बाला साहब ठाकरे का मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जो बाला साहब ठाकरे के साथ मेरा इंटरव्यू था वो शिवसेना ने अपने फेसबुक पेज पे दोबारा लगा रखा है, बाय द वे, जहां पे बाला साहब ठाकरे ने कहा है कि भैया वो कारगिल करते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया पे बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, और क्या है कि हमारे पार्लियामेंट के ऊपर अटैक करते हैं और हम उनके साथ क्रिकेट खेलते हैं, हम जैसा बेशरम कोई और है नहीं, ऐसा बाला साहब ठाकरे ने कहा है उसमें। एनीवे, थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।
Thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. थैंक यू सर. Right, but the fact is, as far as we are concerned, we have to be very consistent about our policy. What is it that we are doing? I can understand why we are playing Pakistan. Let's be very clear, because now we need China with us. पाकिस्तान के ऊपर अगर आप ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो हो सकता है कि चाइनीज आपके साथ क्या कर दें, God knows, which I doubt very frankly speaking, because the Chinese also need us, they need our market, because the American market is now going to be close to them very, very shortly. So they will need a new market, and India, by the way, is the biggest market in the world. So we have to play this very, very cleverly. और सीधी बात है प्रदीप जी, अगर मान लीजिए भारत जो है वो बहिष्कार कर देता है एशिया कप का, भाई हम नहीं खेलेंगे, आतंकवादियों के साथ नहीं खेलेंगे, क्या होने वाला था? एशिया कप हो जाता with hardly any interest, कोई दिखता भी नहीं, पैसे भी नहीं आते, कुछ नहीं आते. Without India's participation, cricket in Asia is dead. Let's be very clear. There is no cricket in Asia without India's participation. But आज जो हुआ, I mean कल जो हुआ, where the captain talks about the armed forces, the captain talks about. He said he dedicated this to all the repeated victims. by Gautam Gambhir. I mean, it was, this event would never happen if we had boycotted. But as you say, we all believed earlier that we shouldn't play. But after they played, they have turned it around and made this an international event of condemnation, where Pakistan is running from pillar to post, first asking for the match referee to be out, suspended, then complaining to the ICI. इतना panic situation पाकिस्तान में कभी नहीं देखा. देखिए साहब, मेरा अपना विचार ये है कि बातचीत कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए. और जहां तक खेल कूद का सवाल है, यू शुड मीट एवरीबडी एवरीवेयर, यू शुड नॉट बॉयकॉट एनीवन. लेट्स बी वेरी क्लियर. ये मेरा ओपिनियन है, भले वो रूस हो, भले वो चाइना हो. तो अगर ऐसी बात है तो व्हाई डोंट वी बॉयकॉट चाइना? भाई 20 लोग आपने मारे ना हमारे गलवान में, दैट्स आल्सो एन एक्ट ऑफ टेरर. वो तो बातचीत करने गए थे. हमारे कर्नल बाबू जो हैं वो तो बातचीत करने गए थे आपसे, आपने उनको जान से मार दिया. व्हाई डोंट वी बॉयकॉट देम? But it's the same. What is sauce for the goose is sauce for the gander. It's as simple as that. तो हुआ था, हमारे आर्मी ने रिटेलिएट भी कर दिया था. At the same time, the first time we have got around 20 ammunition manufacturing depots on the northeast border. We are looking east. We are building roads. I'm talking about something else. No, we are looking at eye to China. पहले गवर्नमेंट तो सरकार तो डरते थे वहां पर कुछ करने के लिए, एयरफील्ड डालने के लिए डरते थे, रोड बनाने के लिए डरते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप के लिए डरते थे. आज हम एम्यूनिशन डेपो, एम्यूनिशन मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रीज नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर पे कर रहे हैं. Now this is the first step towards that. All I am saying, looking eye to eye with China. Sir, all I am saying is now we are getting closer to the Chinese. We don't have a choice because Mr. Trump is attacking us in all sorts of ways. So Russia, India, China are coming closer together. Pakistan is a player there, albeit a peripheral player. So irrespective of anything else, at some point of time, whether we like it or not, we'll have to talk to Pakistan. And as far as cricket is concerned, I felt very good, very frankly speaking, when Surya Kumar Yadav said what he said. Surya Kumar Yadav ji ने जब कहा कि ये मैं dedicate करता हूँ, I dedicate this to all the victims of the Pahalgam attack, and we salute our armed forces. I felt really great. No other Indian sporting captain has ever done this before, very frankly speaking. So to me, it was a really, really great moment. And I hope it continues. It also displays the strong leadership of the country, because never has the leadership of the country influenced a cricket captain to talk like this. I don't think Surya Kumar Yadav would have done it on his own. It is the obviously Mr. Gautam Gambhir would have been told from Delhi कि भाई ये कहलवा दीजिए, ये करना है आपको, तो बहुत बढ़िया. तो जो आपने पहले ये टॉपिक उठाया कि 2008 के बाद जितने भी क्रिकेट मैचेस थे, we needed to have that kind of भाई देखिए चंडीगढ़ में सेमीफाइनल, प्रदीप जी मोहाली में सेमीफाइनल हुआ इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड कप में, 2011 की बात है. तो वहां पर धोनी साहब को बोलना चाहिए था ना, आई डेडिकेट दिस विक्ट्री टू द विक्टिम्स ऑफ टेरर इन मुंबई. 2008 में जो मुंबई में लोग मरे, वहां पर उसको बोलना चाहिए था. और उस वक्त बाय द वे प्रदीप जी, आज की तारीख में नासिर साहब बोल रहे थे, मैं बोलना नहीं चाहता था, ये बहुत लंबा हो जाता शो, उस वक्त आपने पाकिस्तान को बॉयकॉट क्यों नहीं किया भाई? You should have said, World Cup है, so what? We give up the World Cup. We will not invite Pakistan. पाकिस्तान को हम खेलने नहीं देंगे हिंदुस्तान में, बोलना चाहिए था. क्यों नहीं बोला सर? सीधी सादी बात है. So as far as the Congress is concerned, that has also been very, very inconsistent. Right now, the Congress is boycott this, boycott that. आप लोगों ने क्या boycott किया? आप तो ये बताओ.
2008 के बाद आपने एक रिटेलिएशन भी नहीं करी। पाकिस्तान ने मुंबई शहर पर हमला किया। इट वॉज एन अटैक ऑन इंडिया बाय पाकिस्तान। there should be no bones about it. The fact is, it was an attack by Pakistan on India. What did you do? Nothing. So here you've had Operation Sindoor और अभी क्रिकेट खेलनी है तो भैया क्रिकेट खेल लो, ऐसी क्या बात है? No problem. We had situation like शाहिद अफरीदी यहाँ पर आता है, इंडिया में खेल रहे हैं, and he's talking about Kashmir. Yes. And there was no retaliation from here. Because we were told not to. The government of India told them not to. कि ज्यादा बात नहीं करनी है। सर मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ। It's a very controversial subject. 1982 में एशियन गेम्स हुई। I was covering the Asian Games. That was, by the way, my first assignment. आपको मालूम है, one particular girl who had been assigned to the Iraqi football team was gang raped. आपको मालूम है, their entire situation was covered over. उस विषय के बारे में क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आई कि इसके बारे में कोई लिखेगा नहीं। हम लोगों ने फिर भी लिखा और उन लोगों को, प्रदीप जी, बिना किसी पनिशमेंट के, फुटबॉल टीम थी, बिना किसी पनिशमेंट के 4 लोग थे उसमें, उन सबको बाइज्जत वापस भेज दिया। कांग्रेस की सरकार थी। आज की तारीख में ऐसा नहीं होता भाई। आज की तारीख में लटका देंगे तुमको, करके दिखाओ। ये हिंदुस्तान है, अब नया हिंदुस्तान है। खेल के मैदान में भी मारेंगे, जंग के मैदान में भी मारेंगे, हर जगह मारेंगे और ऐसी बुरी तरह मारेंगे कि रो पड़ोगे तुम। आज की तारीख में शोएब अख्तर हो गया, जो बकवास कर रहा था वी बिलीव इन द टू नेशन थ्योरी, यहां पर आकर के बोलता है वी बिलीव इन द टू नेशन थ्योरी। शाहिद अफरीदी, वो क्या बोलता है? हिज ओन अंकल, बाय द वे, हिज ओन ग्रैंड अंकल वाज वन ऑफ दोज कबेलीज who committed rapes, who committed murders in POK. अपना क्या नाम था उसका? वकार यूनुस, इंजमामुल हक, क्या क्या बोल गए? वेल, ये नया हिंदुस्तान है, अब झेलिए। एंड इफ पाकिस्तान वांट्स टू बॉयकॉट द एशिया कप, वेलकम। Who wants you anyway? Nobody wants you anyway. Let's be very, very clear. If the Pakistanis want to go back home, I think the Pakistani fans will be the most relieved कि हिंदुस्तान से कहीं दोबारा पिटाई ना हो। सीधी बात है। That's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही। आपको कोई भी कमेंट अगर भेजना हो तो जरूर भेजें, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। अच्छा, बाय द वे, व्हाई वर वी शोइंग दोस क्रिकेटर्स ड्रेस्ड इन वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लोथ्स? क्या है वो, फैशन शो दिखा रहे थे हम लोग? क्यों दिखा रहे थे भाई? Anyway, we'll talk about that later. Subscribe जरूर करें भाई चैनल को। प्रदीप The जी, fastest growing channel of the nation now. The fastest growing channel of the nation now. I wanted India to boycott the Asia Cup, but watching what Surya Kumar Yadav did yesterday and Gautam Gambhir, I've changed my mind. We should play, and we should beat the hell out of them each time we meet them, and we should not shake hands with them. That's it. और जिसको हाथ मिलाना हो पाकिस्तान से, वो जाके अपनी भैंस चराए या जाकर के हाथ मिलाए। सीधी बात है। That's it. That's all we've got for you in tonight's show. मुझे पीसीआर से किसी की हंसने की आवाज आई थी, जिसको भैंसे बहुत पसंद है शायद। That's it. That's all we've got for you. नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। Vande Mataram. भारत माता की जय, जय हिंद। Jai Hind.